Hello, welcome back to Social Science class. We started class 6th, chapter number 1, and in part 1 video we have discussed what is history, why we should study history, and we have learned that history is very important for all of us. This is not only about past, this is related to our present also, because we can learn so many things from history, and by reading history we can understand that how this modern world has emerged over long centuries of development. इतने सालों के विकास के बाद ये नया आधुनिक विश्व कैसे बना, वो हम हिस्ट्री की मदद से सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर, and this lesson start with Rashida's question. राशिदा इज़ वन गर्ल ऑफ 6th क्लास। 6th क्लास की एक लड़की राशिदा, आप ही की क्लासमेट, उसके माइंड में वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है एंड उसके माइंड में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसकी हेडलाइन ऐसी होती है न्यूज़पेपर की, 100 years ago. सो सी वॉज वंडर्ड, आश्चर्यचकित, वो बहुत आश्चर्य होता है उसको। हाउ सी वंडर्ड, could anyone know what had happened so many years ago? उसको बहुत हेडलाइन देख के सरप्राइज्ड हो गई वो, कि कैसे कोई 100 साल पहले हुआ, वो कैसे जान सकता है। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो और देख रहे हो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कैन नो विद हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी, और ये आपको याद होगा, आप देखते हो, हमें पता चल जाता है। 1 year ago हम किसी से पूछ के, रिलेटिव से बता सकते हैं। व्हाट हैपेंड 100 years ago और 1000 years ago, हाउ कैन वी नो? So Rashida was also wondered that what happened 100 years ago, how can we know? यही सब चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे कि 1000 year ago या 100 year ago जो हुआ उसको एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलता है। हाउ कैन वी नो? What are the sources to know about history? Let's see how it can be done. What can we know about the past? And there are several things we can find out. What people ate means उनकी ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना खाते थे वो लोग, क्लोथ्स दे वोर, किस टाइप के, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, the houses in which they lived, and we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. और सभी लोग कैसे रहते थे पास्ट में, इन सब की लाइफ हम हिस्ट्री से पता चल सकती है, lives of different people. And we can also find out about the games children played, and the stories they heard, the plays they show, and the songs they sang. ये सभी हमें हिस्ट्री की हेल्प से पता चल सकता है। Nowadays you are playing cricket, बैडमिंटन, फुटबॉल, सम ऑनलाइन गेम्स, पर ये सभी आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम में नहीं था, तो उनकी स्टोरीज़ भी अलग होगी, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं, कैसे इमेजिन करेंगे, तो वो उनकी लाइफ कैसे लगती है, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। वेयर डिड पीपल लिव? सो वी विल फाइंड आउट अबाउट वेयर people lived, what people ate, what kinds of clothes they wore, in what kinds of houses they lived, what kind of games they played, what kinds of food they ate. ये सभी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे हिस्ट्री में। Where did people live? Find the river Narmada on map 1. We can find out Narmada river in MP. You can see in next slide. MP में मतलब सेंट्रल पार्ट, नॉट ओनली वन स्टेट, सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उससे फ्लो होती है नर्मदा रिवर। सो वो पहले हम देखते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए कि लोग कहाँ रहते थे पहले स्टार्टिंग में, वो 1000 years ago सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया, वो देखने के लिए। यू कैन सी नर्मदा रिवर हियर इन मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ नर्मदा रिवर है। अब ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम,
और सारी चीज़ें देखने के लिए। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. Gatherers means that is people who gathered their food. एक ऐसा वो लोग जो अपना खाना इकट्ठा करके खाते हैं, कलेक्ट करते हैं कहीं से फ्रूट्स, कुछ भी चीज़ें, रूट्स, and from their surroundings, because they know the vast wealth of the plants in the surroundings forest, and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. So the people who lived near this bank of river Ganga, they were hunters, शिकारी, शिकार करते थे, हंटर्स और गेदरर्स थे जो अपना फूड कलेक्ट करते थे नर्मदा रिवर के आसपास जो लोग रहते थे. Now you can see the Suleiman and Kirthar hills here, जो पाकिस्तान के पार्ट है, but we know that Pakistan was also part of India only before 1947, after partition of our country in 1947. So ये हम इसको इंडिया ही मान के चलेंगे. उससे पहले 1947 से पहले की बात कर रहे हैं हम. So you can see Suleiman and Kirthar hills. These are some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ये जो जगह है सुलेमान एंड किरथर, यहाँ 8,000 साल पहले सबसे पहले लोगों ने ज्वार, बाजरा, गेहूँ और ज्वार का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उनको उगाना, ऐसी सभी फसलों को उगाना शुरू किया था यहाँ से. और वो बात कर रहे हैं हम 8,000 years ago. So now you will be wondered how can we know about 8,100 years ago. So with help of manuscripts and inscriptions we can know these things, और some evidence, साक्ष्य, जो remaining things रह गई है उस समय की, वो क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. पर हम देख रहे हैं सुलेमान और किरथर हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ पर सबसे पहले 8,000 years ago people started growing crops such as barley and wheat about 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. So यहाँ पे जो लोग रहते थे वो गाँव में रहते थे और पालतू जानवर जैसे कि sheep, goat, बकरी, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था इन लोगों ने सबसे पहले. Now we talked about rice, wheat and barley. So the place where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. विंध्याचल, विंध्या पर्वत के आसपास के एरियाज में फर्स्ट टाइम राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में. So what we learned in previous slides, earliest people were hunter gatherers. So they wandered from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते रहते थे क्योंकि वो hunter gatherers थे. And did not have fixed or permanent settlements. These peoples were not have permanent settlements but mainly wandered along the banks of river like Narmada. People began to grow crops like wheat and barley in Suleiman and Kirthar hills around 8,000 years ago, and also in Garo hills of northeast. Then they started cattle rearing to get meat, wool and skin. ये सभी लेने के लिए उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया. ये सभी चीज़ें हमने पिछली साइड में देखी. एंड राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया हमारे एंसेस्टर्स ने. Around 5,000 years ago, some of the earliest cities flourished along the banks of river Indus and its tributaries. For example, this was Indus Valley civilization. सिंधु नागरिक सभ्यता कन्नड़ದಲ್ಲಿ सिंधु नगर सभ्यता का जो विकास हुआ 5,000 years ago, वो सब इन रिवर्स के आसपास ही हुआ था, जो कि इंडस रिवर. हम इसके बारे में और डिटेल में जब भारत का नाम कैसे भारत बना वो डिस्कस करेंगे तब बताएंगे.
इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज मीन्स हेल्पिंग रिवर्स, जो इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके साथ बहती हैं, उनके आसपास ही सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुआ. सो दीज we will see where is this Indus Valley civilization. ये इंडस रिवर कहाँ है वो पहले हम देख लेते हैं. यू कैन सी इन दिस मैप ए इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये जगह है पाकिस्तान और भारत का जो पार्ट है अभी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप अच्छे से देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं. ये इंडस रिवर है. इंडस रिवर ये मेन रिवर है और इसकी सहायक नदियाँ सतलज, रावी, व्यास, चिनाब. तो इसी को पंजाब भी हम कहते हैं. पंजाब मीन्स द ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का समूह है. सो ये हाफ पंजाब अभी इंडिया में है, हाफ पाकिस्तान में है. सो ये यहीं पे सिंधु नागरिक सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ था. और इसके बाद almost 2500 years ago, some of the cities were developed near this गंगा रिवर. ये नॉर्थ पार्ट है हमारे कंट्री का, गंगा रिवर. यहीं पे कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ. So later about 2500 years ago, cities developed on the bank of the river Ganga and its tributaries and along the sea coast. So गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सोन. ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैंने पहले ही बताया, हेल्पिंग रिवर्स, सहायक नदियाँ जो इनके साथ, सोन और चंबल, माही, ये सारी जो बहती है इसके साथ साथ. एंड इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध. जब हम ये अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनपदाज, महाजनपदाज, तब देखेंगे आप मगध. सो दिस मगधा, जो मगध है, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश ये रिवर बहती है. सो ये मगध और बिहार, ये मगध भी डेवलप हुआ इसी नदी के किनारे के साथ साथ. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अ लार्ज किंगडम एंड किंगडम्स वर सेट अप इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो एज वेल. So what we discussed up to here, along the banks of river Narmada, Ganga and Indus, सभी जो स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, वो नदियों के किनारे पे हुआ. वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी जल उपलब्ध था, रहने की जगह. वहाँ पे उन्होंने राइस का और वीट का कल्टीवेशन शुरू किया. तो ये कुछ कारण थे. पानी है तो फिर वो वहाँ पे घर बना के रहना शुरू किए, जानवरों को पालना शुरू किया. ये कुछ कारण थे. अब हम देखेंगे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, परमानेंट नहीं रहते थे. उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ वो हम नेक्स्ट देखेंगे. अभी एज वी नो, स्टार्टिंग में पीपल्स जो लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, एक स्थायी एक जगह पे नहीं रखते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे. वाई दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? मैन एंड वुमेन मूव्ड इन nowadays. Why we moved from one place to another place? In search of livelihood. कुछ जीविका कमाने के लिए, कुछ लोग जॉब करने के लिए जाते हो. आप अभी अपने घर से आओगे, स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक, कोई ट्रेवलिंग के लिए. तो बहुत सारे कारण होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने का. पर पास्ट में लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. सो एज ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. कभी बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सूखा हो गया उस जगह पे, तो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी लोग मूव करते थे. और खाने के लिए, जीविका के लिए. एंड समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स. दूसरे जब वो आक्रमण करते थे दूसरे देश पे, तो वो एक सेना बना के दूसरी जगह पे मार्च करते थे, जाते थे, क्योंकि वो उस पार्ट को भी अपने ही कंट्री में मिलाना चाहते थे. एंड मर्चेंट्स ऑल्सो ट्रेवल विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस, बहुत सारी चीज़ें लेके एक दूसरे वो बेचने के लिए मर्चेंट्स व्यापारी सेल करने के लिए जाते थे। रिलीजियस टीचर्स क्यों जाते थे एक जगह से दूसरे? वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, वाई? टू इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। वो लोगों को सिखाने के लिए एक दूसरे से एक से दूसरी जगह जाते थे। एंड सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइव्ड बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के लिए भी कुछ लोग ट्रेवल करते थे विद इन टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ लोगों पर जो एक जगह से दूसरे जगह गए, वो भी हम देखेंगे अभी। So what was the effect of this traveling? These movements of people enriched our cultural traditions. कैसे हमारे संस्कृति में और बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई। People have shared new ways of carrying stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राजस्थान से कर्नाटका में आया तो वो यहाँ अपने साथ कुछ ईटिंग हैबिट्स लेके आया, यहाँ के लोगों को सिखाया, खाना शेयर किया, तो अपना जो क्लोथ्स पहनने का तरीका है यहाँ के लोगों से कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट की, तो वो एक संस्कृति का मिश्रण हुआ, मिक्सचर ऑफ कल्चर। और ये सारी चीज़ें एनरिच करती हैं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को। सो ट्रेवलिंग का इफ़ेक्ट ये हुआ कि लोग एक दूसरे की आदतें सीखने लग गए। ओके ये सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में देखी, ऐसा ऐसा हुआ, पर किस बेस पे हम कह रहे हैं कि ये सब हुआ? हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, व्हाट आर द सोर्सेज? वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।